Good morning, student. We are just completed your chapter number 7, that is World of Living. Today we just recapitulate what we had done in this chapter. So first of all, we talk about living and non-living things. So environment consists of living and non-living things. All living things are made up of cells. So the definition, what is cells? Cell is the basic unit of life. And organisms can be unicellular or multicellular. Okay. फिर हमने किया था living और non-living. Living things क्या थे? Which have ability to grow, respire, respond, reproduce and excrete are said to be your living things. All living organisms are grouped into plants and animals on the basis of their common characteristic. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल में कैटेगराइज किया था. प्लांट्स को हमने क्या किया था, अलग अलग कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, साइज एंड शेप. उसमें थे आपके हर्ब्स, शरब्स एंड ट्रीज. फिर हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन. उसमें थे आपके एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. ठीक है. आफ्टर दैट फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था ऑन द basis of their bearing and not bearing of flowers. ठीक है. देन हमने किया था मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स. वो आपके क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स. फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे पढ़ा था हमने ऑटोट्रॉफ्स एंड हिटरोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, एंड दोज हु कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो हिटरोट्रॉफ्स थे. ठीक है. दैट डिपेंड्स ऑन अदर. फिर एनिमल्स डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लिविंग. तो एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन इन देम. ठीक है. तो वो थे आपके वर्टेब्रेट्स हैविंग बैकबोन, इनवर्टेब्रेट्स हैविंग नो बैकबोन. देयर फूड हैबिटेट्स एज herbivores, carnivores, omnivores, frugivores, insectivorous, saprophytes and parasitic animals. ठीक है. तो उनके फूड हैबिट्स क्या क्या थे, उस पर भी हमने कैटेगराइज किया था. फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेइंग एग्स. तो अलग अलग कैटेगराइज किया था हमने. देन the type of their body covering like scales, slim skin, feather or hairs. The plants and animals provide a number of useful material. They are of great importance to our ecosystem. So plants and animals, they are very, very important. So on the basis of this, let's talk about your key words which are used in this chapter. First है आपका annuals. Annuals क्या था? Plants that survive for one season only. ठीक है. जो आपके one season survive करेंगे, that are said to be your annuals. फिर आपका autotrophs था. Plants which prepare their food by the process of photosynthesis. अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, वो आपके क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स. देन आपका था बाइनियल्स प्लांट्स, प्लांट्स दैट लीव फॉर 2 सीजन्स. ये आपका बाई था. फिर आपका सेल. सेल क्या था? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. फिर फ्रूजीवोर्स था, एनिमल्स विच ईट फ्रूट्स ओनली. एग्जाम्पल भी दिया था आपका, लाइक पैरट जो ओनली फ्रूट्स ईट करता है, वो आपके क्या है, फ्रूजीवोरस. देन आपका हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ग्रो इन वाटर. तो आपके वो क्या थे, हाइड्रोफाइट्स दैट ग्रो इन वाटर and needs a lots of water. Then heterotrophs, plants which cannot prepare their food, they use food synthesis by other plants and
एनिमल्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, दे कांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन, आर सेड टू बी योर heterotrophs. Then habitat, a place where plants and animals live, get food and interact with the environment, said to be your habitat. Then insectivorous था, that feeds on insect only. ठीक है. Invertebrates था, animal which do not have backbone. Like आपका क्या था? Yes, earthworm. Then आपका mesophytes था, plants that grow on land and need moderate amount of water supply for their survival. Those are said to be your mesophytes. फिर हमने पढ़ा था multicellular organisms. ठीक है, organisms like human and which consist of many cells. तो आप मल्टी से ही क्लियर हो रहा है, बहुत सारे. तो ये आपको क्या बोलेंगे? Having many cells are said to be your multicellular and organisms. Example आपके human and etc. Then parasites था, organisms which feed on other animals body. ठीक है, ये अदर डेड बॉडी से क्या करते हैं? अपना फूड ड्रॉ करते हैं. देन पेरिनियल, प्लांट्स दैट लीव फॉर मैनी सीजन्स. देन सेप्रोफाइट्स, प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज, आर सेड टू बी योर सेप्रोफाइट्स. फिर यूनिसेल्यूलर था, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्स. एग्जाम्पल भी हमने किया था अमीबा, it is made up of single cell. Then आपका था vertebrates, invertebrate having no backbone, and vertebrate animals which have backbone, said to be your vertebrates. ठीक है, तो human being is the example for this. After that, xerophytes, plants that grow in deserts and need very small amount of water for their survival. ठीक है, वो वाले प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है उनको अपने सर्वाइव करने के लिए, दोज आर सेड टू बी योर xerophytes. एग्जाम्पल भी आपको करवाया था, बताया था मैंने, क्या था? कैक्टस. ओके, तो ये क्या है? डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं और इनको पानी की क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा कम चाहिए होते हैं. दैट्स वाई दीज आर सेड टू बी योर xerophytes. दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. सो इन दिस चैप्टर ये आपको क्लियर था. इम्पॉर्टेंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल कम इन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज योर डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये आपको पता होना चाहिए, हमने पूरा पढ़ा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स बन जाएगा. राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एटलीस्ट 6-7 पॉइंट यू हैव टू राइट डाउन. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे. इसमें आपको पता होना चाहिए सेल्यूलर स्ट्रक्चर पे क्या है. सेल से बने होते हैं नॉन लिविंग, दे आर नॉट मेड अप लैक ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ग्रोथ पर आपका क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट. ठीक है, दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, दे कैन नॉट मूव. फिर एक्सप्रेशन था, रिस्पॉन्स था, रिप्रोडक्शन था, लाइफ स्पैन. दे हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, दे हैव नॉट डेफिनेट लाइफ स्पैन. ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7, that is the world of living. Next time we will discuss your exercise. Thank you and have a nice day.